Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अनुवादन करता हूँ। It's a joy to study the Gospels. ये आनंद की बात है कि हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहे हैं। Here we are studying through the Gospel according to Mark. और हम मरकुस का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। We are in chapter 13 now. और अभी हम 13वां अध्याय में हैं। And we are going to study through verses 24 to 27. और आज हम 24 से 27 वचन तक पढ़ेंगे। It's a very interesting passage. और ये बहुत ही दिलचस्प वचन है। Small, but it's very deep. छोटा सा है लेकिन बहुत ही गहराई में है। The previous portion we studied about Jesus really telling his disciples and prophesying so many things that are going to happen. पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह कैसे भविष्यवाणी करते हैं कि बहुत सारे घटनाएं जो घटने वाली है। He talked about, the suffering that people would go through or things that are going to happen has never happened since the beginning of the world. और उन्होंने कष्ट के बारे में बताया, जो कष्ट इस दुनिया में आने वाली है वो इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है और वो सबसे पहला घटना इतिहास में होने वाला है। So here we are studying through the Gospels and we understand how Jesus really walked on the face of earth teaching his disciples, and today we have that in the form of the Bible for us to know. और यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ उन्होंने सिखाया, इस पृथ्वी में वो चले, इस पृथ्वी में बहुत लोगों को उन्हें सिखाया और वही आज हम बाइबल में पढ़ते हैं और उसके बारे में हम सीखते हैं। That's why we need to pay attention to every word and focus on it and study. इसलिए हमें हर एक वचन के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसे गहराई से पढ़ना चाहिए। So as we see, the word unfolds and it really shows how Jesus knows about everything that's going to happen. और हम देखते हैं कि आगे कैसे यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है कि क्या-क्या होने वाला है। Trusting Jesus and believing in Jesus is not stupidity. और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना कोई मूर्खता नहीं है। It's the wisest thing you can do. और ये बहुत ही बुद्धिमानी है कि हम यीशु मसीह के पीछे चले और उनकी बातों को सुने। Following someone who knows about everything that's going to happen in the future is the wisest thing anyone can do. उसके पीछे चलना जिसे सब कुछ मालूम है कि भविष्य में क्या होने वाला है, वो ही बुद्धिमानी है। So let's dwell into this word in verse 24. और अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, वचन 24। उन दिनों यातना के उस काल के बाद सूरज काला पड़ जाएगा, चांद से उसकी चांदनी नहीं चिटकेगी। So we can read here that these words that Jesus is speaking here are also mentioned in Isaiah and in Jeremiah. और यीशु मसीह इस वचन के बारे में जो बात कर रहे हैं वो वचन हम यशाया में और यिर्मयाह में भी देख सकते हैं। So everything that Jesus is prophesying here, if you know, has come true within 40 years except for one thing. और यीशु मसीह ने जो भी भविष्यवाणी की है वो इस 40 सालों में पूरा हुआ है सिवाय एक के। And now what we are going to see here in verse 24 onwards is going to happen in the end of everything. और हम वचन 24 में ये भी देखते हैं कि जो कुछ भी होने वाला है वो अंत में होने वाला है। Let me repeat that again. मैं वापस से बताना चाहूँगा। All that we have studied so far till verse 24, all the prophecies of Jesus have been fulfilled within 40 years from the time he prophesied. और अब तक हमने वचन 24 तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो यीशु मसीह ने जो कुछ भी भविष्यवाणी की है वो इस 40 सालों में पूरा हुआ है। But लेकिन there are few things that he's saying now that's going to be fulfilled in the future. और कुछ बातें ऐसी है जो उन्होंने बताया है जो भविष्य में पूरा होने वाला है। Example, his coming in glory. उदाहरण के तौर पे उनका वापस आना महिमा में। In verse 24, the sun turning into darkness and moon does not give its light. 24वां वचन में उन दिनों यातना के उस काल के बाद सूरज काला पड़ जाएगा, चांद से उसकी चांदनी नहीं चटकेगी। This will be the fulfillment of the prophecy finally. और ये भविष्यवाणी पूरा होता है अंत में। But anything that has been told before came to pass, like the temple, falling down and the abomination of the desolation that happened. All those incidents really took place in the history that we could read
in the church history. और इसके पहले जो कुछ भी यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी मंदिर के बारे में कि घृणा विनाशकारी होगा, वो सब कुछ पूरा हुआ है और हमने देखा है और हमने इतिहास में इसके बारे में पढ़ा भी है। So now in verse 24, what is Jesus talking about? और अभी वचन 24 में यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? He specifically mentions that after the suffering, after the suffering, the sun will be darkened and the moon will not give its light. और यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उन दिनों यातना के उस काल के बाद। So this is a reference to verse 19. I would bring you to verse 19. और ये संदर्भ हमें बताता है वचन 19 के बारे में। So Jesus there did say that the suffering will be so much that unlike anything that has happened before from the beginning of the creation that God created until now or ever will happen. और ये कष्ट इतना बड़ा होगा कि इस दुनिया के इतिहास में आज तक ये नहीं हुआ है और इतना बड़ा कष्ट इस दुनिया के ऊपर आने वाला है जो बहुत ही खौफनाक होने वाला है। That's terrifying. और ये बहुत ही दर्दनाक होगा। But on top of that suffering, इस कष्ट के ऊपर the world has never seen in the history there are going to be still more that's going to come, is what Jesus is saying. और यीशु मसीह ने कहा इस कष्ट के ऊपर बहुत सारी खौफनाक चीजें होने वाली है इस दुनिया के इतिहास में जो पहले किसी ने नहीं देखा। Dreadful. बहुत ही भयानक। Many times you would have heard the word apocalypse. बहुत बार आपने ये जो शब्द है एपोकलिप्स के बारे में सुना होगा जिसका मतलब है कयामत। This word apocalypse actually refers to these events. और ये कयामत का मतलब यही घटना के बारे में वो बता रहा है। It is the end of time. ये अंतिम समय के बारे में बताता है। When sun darkens, no day exists. जब सूरज काला पड़ जाएगा तब दिन नहीं रहेगी। When moon doesn't shine, there is no night that exists. जब चांद नहीं चमकेगा तो रात नहीं रहेगी। It's like the beginning that we read in the book of Genesis before light came into existence. जब हमने शुरुआत में पढ़ा था उत्पत्ति में जब वहाँ पे कोई रोशनी नहीं थी। When there was no light, everything was dark. जब रोशनी नहीं थी सब कुछ अंधकार था। That's how it's going to be in the end of time. और ऐसा ही होने वाला है अंतिम समय में। Extremely dark moment in the world. और इस दुनिया में सबसे भयानक अंधेरा का समय होने वाला है। So when in the beginning, when everything was dark, God spoke and the word, the light appeared. और हम उत्पत्ति में देखते हैं कि जब सब जगह पे अंधकार था परमेश्वर ने बात किया, उन्होंने शब्द बोला और वहाँ पे रोशनी हुई। Now this is going to be something similar in the end too. और यही हम समय के अंत में भी देख पाएंगे। Every light that gives light to this world will be darkened. और जो पूरा रोशनी इस दुनिया को रोशन देता है वो अंधेरा हो जाएगा। Interesting. दिलचस्प है। Verse 25. वचन 26। आकाश से तारे गिरने लगेंगे और आकाश में महाशक्तियाँ झकझोर दी जाएगी। The stars will be falling down from heaven. और तारे आकाश से नीचे गिरेंगे। Since the beginning, these stars existed in its place and moved around, nothing happened to them. शुरुआत से हम देखते हैं कि ये तारे आकाश में यहाँ से वहाँ हम उसे देखते हैं जाते वक्त, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। But Jesus is saying they'll fall like, dried petals of a flower. और अभी यीशु मसीह कह रहे हैं कि यही तारे सूखे हुए पत्ते की तरह नीचे गिरेंगे। And Jesus is saying the powers in the heavens will be shaken. और आसमान के सामर्थ हिल जाएंगे। This is not something you want to experience in life. और ये ऐसा है कि हमें इसका अनुभव नहीं करना है। Verse 26. वचन 26। तब लोग मनुष्य के पुत्र को महाशक्ति और महिमा के साथ बादलों में प्रकट होते देखेंगे। Everyone will see. सब लोग देखेंगे। No eye can miss it. और कोई भी इसे गवाएंगे नहीं। It's not a sign or an event that anybody can miss. ये ऐसा कोई चिन्ह या घटना नहीं है कि कोई इसे गवा देंगे। Every non-spiritual person will see. गैर आध्यात्मिक लोग भी इसे देखेंगे। Every believer, everyone will see. सारे विश्वासी सब लोग इसे देखेंगे।
Every false prophet, every false religious leader will see it. झूठे भविष्यवक्ता, झूठे धार्मिक अगुवाई सब लोग देखेंगे And their followers will see it. और उनके पीछे चलने वाले लोग भी देखेंगे They will not miss it. और इसको वो गवाएंगे नहीं। Meaning anybody who is alive will see it. इसका मतलब ये है कि जो भी उस समय जिंदा होगा वो सब लोग देखेंगे। See, we remember the disciples asked, Lord, when is this going to happen? हमें याद है कि यीशु मसीह के शिष्य ने उनसे पूछा था कि परमेश्वर ये कब होने वाला है। You can read in verse 3 and 4 if you want to. अगर आप चाहते हो तो इसे वचन 3 और 4 में आप पढ़ सकते हो। But Jesus responded to them, and then he is giving all these details, but he did not give a time frame. यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया और उन्हें सब कुछ जो भी उनको ज्ञान चाहिए था वो दिया, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय नहीं बताया। So, it's necessary for us to learn that we should not fix a time frame for all these things. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई भी समय निश्चित नहीं रखना चाहिए कि ये कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। But today we see people prophesy and put a time frame to things, so we need to be very careful of that. हम आजकल देखते हैं कि बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जो भविष्यवाणी करते हैं और निर्धारित समय बताते हैं कि किस समय में ये होने वाला है। We should avoid it and be careful. और इससे हमें दूर रहना चाहिए। You know, some of those things even make sense, I understand, but even if it makes sense, just don't rely on it. That's what my advice is. मैं यही कहना चाहूँगा, कभी कभी हम ये बातों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये सच है, लेकिन फिर भी हमें ये सारे चीज़ों से दूर रहना चाहिए। All these eyes are going to see. सब आंखें देखेंगी, For them it's terror, उनके लिए ये भयानक होगा, but for you and me it's good news. लेकिन आपके लिए और मेरे लिए ये सुख समाचार है, Because Jesus is coming. क्योंकि यीशु मसीह वापस आ रहे हैं। Not as an ordinary person. एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे नहीं आ रहे हैं, In the clouds, वो बादलों में आएंगे, with his glory and power. वो महिमा में और सामर्थ्य में आएंगे। Imagine with me. आप मेरे साथ सोचिए, It's interesting when Jesus arrives, ये दिलचस्प है जब यीशु मसीह आएंगे there will be no other light वहाँ पे और कोई रोशनी नहीं होगी, except his light, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का रोशनी होगा, except his glory. सिर्फ और सिर्फ उनका महिमा होगा। No light shining except his glory. और कोई रोशनी वहाँ पे नहीं चमकेगी, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का महिमा वहाँ पे होगा। And he's coming in the clouds, so nothing in the sky is going to shine brighter than his, light and glory. और वो बादलों से आएंगे और उस समय आसमान का और कोई रोशनी नहीं होगी, सिर्फ यीशु मसीह का वो रोशनी ही काफी होगा। Imagine this, only one thing is going to be visible in the sky. आप ये सोचिए कि सिर्फ एक ही चीज आप देख पाएंगे आसमान में। No sun, वहां पे आप सूर्य को नहीं देखेंगे, no moon, चांद को नहीं देखेंगे, no stars, आप तारे को नहीं देखेंगे, just Jesus in his glory amidst all the darkness. सिर्फ यीशु मसीह और उनका महिमा को आप देखेंगे इस पूरे अंधकार में। That will alone be there for you to behold in the sky when you lift up your eyes. और सिर्फ वही रहेंगे और हम अपने आंखों को ऊपर उठाकर उनको देख पाएंगे। It's very interesting, it moves me. ये बहुत ही दिलचस्प है और इससे मेरा मन बह के आ रहा है। See, there's no light from creation. आप देख सकते हैं कि सृष्टि में कोई रोशनी नहीं होगी, Only the Creator's power that moment will be seen. लेकिन उस समय सिर्फ सृष्टिकर्ता का सामर्थ्य को हम देखेंगे। Only the Creator's light you'll be able to see. हम सिर्फ सृष्टिकर्ता का रोशनी को देखेंगे, No other light of the creation will be there. और कोई रोशनी, सृष्टि का कोई भी रोशनी वहां पे नहीं होगा, No power in the creation you will see there. और कोई सामर्थ्य उस सृष्टि में हम नहीं देखेंगे। Only the Creator's power will be manifested and displayed there. सिर्फ सृष्टिकर्ता का सामर्थ्य हम देख पाएंगे, No glory of the creation you will be able to see at that moment. और उस समय हम कोई भी सृष्टि का महिमा को नहीं देखेंगे, Only the Creator's glory will be visible and you could see. सिर्फ सृष्टिकर्ता का महिमा को हम देखेंगे। What a victory. ये क्या विजय है।
What a great day. ये कितना महान दिन होगा। The world, when it talks about Jesus, it talks about the Jesus on the cross. और जब हम यीशु मसीह, ये दुनिया जब यीशु मसीह के बारे में बात करता है तो वो सिर्फ यीशु मसीह का क्रूस के बारे में बात करते हैं। The ones who don't believe say, oh, he died and he was buried, और जो कोई भी विश्वास में नहीं है वो यीशु मसीह को देखकर यही बोलते हैं कि अरे वो तो मर गए और उनको तो क्रूस पे चढ़ाया। We tell them again and again, Jesus rose, he's not there in the tomb. हम बार बार उन्हें कहते हैं कि यीशु मसीह जी उठे और वो वहां पे कब्र में नहीं है। On that day, और उस दिन when Jesus comes, जब यीशु मसीह वापस आएंगे they will see. आप देखेंगे What an entry. ये क्या प्रवेश है। No Superman, no Avenger, no Batman, no movie star or hero you have seen ever will come in that kind of glory. ना कोई सुपरमैन, ना कोई अवेंजर या बैटमैन या कोई भी मूवी का जो हीरो है वैसा नहीं आएंगे जैसे यीशु मसीह वो एंट्री मारेंगे, वो प्रवेश करेंगे। That's my Jesus, I'm telling you. और वो मेरे यीशु मसीह है। And he is waiting to return. और वो वापस के लिए इंतजार कर रहे हैं। So don't ask when is this going to happen. तो आप ये मत पूछो कि ये कब होने वाला है। You should be knowing by now, by the words of Jesus and by studying the Word of God, that Jesus is making it very clear to us. और ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरीके से यीशु मसीह ने इसके बारे में बताया और हम बाइबल में भी इसके वचन के बारे में हमने पढ़ा है तो इससे आपको साफ साफ पता चलना चाहिए। When these things happen, it is time. जब ये सब कुछ घटना होने वाला है तो इसका मतलब ये है कि समय निकट है। Don't be confused or uninformed. तो इसलिए आप भ्रमित ना होइए या बेखबर ना रहिए। Be patient, धीरज बांधे रहे, be ready, तैयार रहे and be awake. और जागरूक रहे। So Christ's return in glory cannot be missed. और यीशु मसीह जब महिमा में आएंगे तो उसे हमें गवाना नहीं चाहिए और हम गवाएंगे नहीं। Everybody of that time would see it. उस समय में जो लोग भी होंगे वो सब इसे देखेंगे। So why are we running around and looking for signs, and looking for more revelation now? तो अभी हम और ज्यादा चिन्ह और प्रगटीकरण के बारे में हम ज्यादा क्यों जानने की कोशिश करते हैं? Don't do that. वो ना करें आप। Because if you believe in Jesus, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो you have a promise. तो आपको वादा दिया गया है You won't miss out on anything. कि आप कुछ भी नहीं गवाएंगे। But if you go around and looking for signs and new revelation, you can be confused. अगर आप यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, चिन्ह के पीछे भागेंगे या कुछ प्रकट होना है उसके पीछे भागेंगे तो आप शायद बहुत सी चीज़ गवा देंगे। Take Jesus' word and the Bible as it is. यीशु मसीह का वचन और बाइबल को जैसा उसमें लिखा गया है वैसे ही आप उसे पढ़ने की और समझने की कोशिश करें। When I go to the shopping mall, I see all the shopping aisles. That experience is kind of confusing sometimes. It creates a confusion in my mind. जब हम कोई खरीदारी करने जाते हैं या मॉल में जाते हैं तो हम इतनी सारी वस्तुओं को देखते हैं कि हम भ्रमित हो जाते हैं। It's a beautiful display and array of things kept nicely, attractively. और बहुत ही सुंदर तरीके से उस वस्तुओं को रखा जाता है। There are many brands. और बहुत अलग-अलग ब्रांड भी हम देखते हैं। You may want to buy something, it's the same thing. और हम वो चीज खरीदना चाहते हैं लेकिन उसी ब्रांड में हम बहुत सारे नाम को देखते हैं। Same thing but many brands. वो एक ही वस्तु को हम अलग-अलग ब्रांड में देखते हैं। Same ingredients. उसमें सब कुछ जो भी सामान है वो एक ही है। But differently packaged. लेकिन उसको जिस तरीके से पैकिंग किया जाता है वो अलग तरीके से होता है। That's exactly how these false prophets and false religion is just propagating the ideas. और उसी तरीके से हम देखते हैं कि ये झूठे भविष्यकर्ता और ये झूठे अगुवाई लोग हैं जो अलग-अलग तरीके से लोगों को भटकाते हैं और भविष्यवाणियां करते हैं। It's attractive. और उसको देख के सब लोग उसके पीछे चले जाते हैं। Look, Jesus said, don't go here and there. यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसके पीछे यहाँ वहाँ आप न जाए।
If there's a time that is required for you to know, won't you think Jesus would have given it to you? अगर आपको सच में समय जानना है कि किस समय पे ये सब कुछ होने वाला है, तो क्या यीशु मसीह आपको ये सब कुछ नहीं बताते? If Jesus has to reveal it, he wouldn't reveal it in his word, but he would reveal it to a person separately. अगर उन्हें बताना होता तो वो बाइबल में उन्होंने वचन के द्वारा बताया होता, ना कि किसी एक व्यक्ति को जाकर वो खुद से जाके बताएंगे। Don't be deceived. तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप धोखा ना खाएं। So all the information available about time frames and things like that about these prophecies, you need to, stay away from them possibly because they may confuse you and deceive you. अगर कोई आपको बोलेगा कि इस समय में यीशु मसीह आने वाले हैं, ये निर्धारित समय है, तो यीशु मसीह आने वाले हैं, तो उसके ऊपर विश्वास ना करें, क्योंकि वो लोग आपको भटका रहे हैं। None of us should be deceived. और हमें भटकना नहीं चाहिए। Don't be carried away. और इसमें आप आगे ना जाएं। Don't shop around for new revelations. तो इसलिए आप जो है नए प्रगति के लिए आप शॉपिंग ना करें। Stick to what you know from the Bible. जो कुछ भी आपको बाइबल से मालूम है, उस वचन में ही आप रहे और उसी में आपका ध्यान रहे। You'll be fine. आप सही रहेंगे। Verse 27. वचन 27। फिर वह अपने दूतों को भेजकर चारों दिशाओं पृथ्वी में एक छोर से आकाश के दूसरे छोर तक सब कहीं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। Who are the elect? ये चुने हुए लोग कौन हैं? I define them in two categories. मैं उन्हें दो भाग में बांटना चाहता हूँ। One, एक, the ones who believe in Jesus now, that is you and me, all of us, are also termed as elect in the Bible. पहला ये है कि जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे कि आप और हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम चुने हुए लोग हैं। The second category, दूसरा, they are the ones who will come to believe during the time of the abomination of the desolation in the new temple in Jerusalem. और ये वो लोग होंगे जो भयानक घृणित विनाश के समय, जब नया मंदिर यरूशलेम में बनाया जाएगा, जब वो लोग विश्वास में आएंगे, उस समय वो लोग चुने हुए लोग हैं। But the elect are spread out everywhere. लेकिन ये चुने हुए लोग सब जगह पे होंगे। He will gather them from north, east, west, south. और यीशु मसीह उन्हें सब जगह से, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सब जगह से उन्हें इकट्ठा करेंगे। Again, वापस we are also the elect. हम भी चुने हुए लोग हैं। He is coming to take his people with him. और वो आ रहे हैं कि ताकि वो अपने लोगों को अपने साथ ले जाए। He's not going to abandon us. वो हमें नकारेंगे नहीं, He's not going to leave us nor forsake us. वो हमें छोड़ेंगे नहीं। So be in peace. तो इसलिए आपको शांति मिले। Do not be anxious. चिंतित ना रहे। Just pray and wait upon him. हम प्रार्थना करेंगे और हम उनका इंतजार करेंगे। Stick to his word. उनके वचन के ऊपर आपका ध्यान रहे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just want to thank you for your word and the way you reveal the future to us from your word. It's exciting, interesting, Lord, sometimes terrifying, but Lord, it's reaffirming and gives us an assurance and hope that you're coming for us and we believe in you and we're not deceived. And you're teaching us so that we don't be deceived. And you're preserving us, keeping us safe. Thank you, Lord. I pray for all my brothers and sisters who've heard this sermon. I pray their hearts be ready for you. Let them yearn to follow you and study your word and be assured of your coming and hope. Let them not be distracted or deviated by these false prophecies and ideas. Lord, come soon. I ask you this in your name. Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा।
तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए आते हैं और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।